میرے فون پر کسی کا میسج آیا۔ آصف نے غور کر یوں دیکھا جیسے اسے مجھ پر شک ہو۔ شرارتاً میں نے بھی اپنا فون اپنے پاس رکھ لیا۔ آصف کہنے لگے، اپنا فون مجھے دو، دیکھوں تو کس کا میسج ہے۔ میں نے کہا، نہیں دکھاؤں گی، تم خواہ خواہ مجھ پر شک کرتے ہو، مجھ پر اب یقین کرنا ہی پڑے گا ورنہ مجھے چھوڑ دو۔ میرے اس بات کو انہوں نے سنجیدگی سے لے لیا اور بولے، اگر تم نے مجھے ابھی ابھی فون نہ دیا تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا کہ جو شخص مجھے اتنی سی بات پر چھوڑ سکتا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ دے دو طلاق، اچھا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ مجھے بھی شوق نہیں ایسے شکی مرد کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنے کا۔ بس یہ کہنا تھا کہ آصف کو سمجھ آ گیا۔ انہوں نے اس وقت مجھے طلاق دے دی اور غصے میں بکتے چلے گئے۔ میں تو سوچتی رہ گئی آصف کس قدر بے اعتبار شخص تھا۔ فون پر دیکھا تو کمپنی کا میسج تھا، تب پچھتانے لگی کہ کاش ان کو دکھا دیا ہوتا۔ بہرحال میرے دل میں پہلے بھی کوئی چور نہ تھا، اب بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنا فون چھپایا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے یہ ادراک ہوا کہ واقعی ہماری راہیں جدا ہو چکی ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہماری 2 سال کی رفاقت تھی اور ان 2 سالوں کو ہم نے محبت سے بتایا تھا، مگر آج معمولی سی بات پر وہ بے وفا مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، میری ہمت نہ پڑی کہ والدین کے گھر جاؤں، وہ بھی اس غمگین حالت میں مجھے دیکھ کر یقیناً پریشان ہو جاتے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ جلد آصف بھی گھر لوٹ آئے گا اور ایسا ہی ہوا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ باہر سے آصف کے قدموں کی آواز آئی۔ یقیناً اب وہ پچھتا رہا ہوگا، میں نے دل میں سوچا، مگر وہ تو میرے کمرے کی طرف بھی نہ آیا۔ آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ بلب بند ہونے کی آواز آئی تو جیسے کسی نے میرے دل پر پتھر گرا دیا ہو۔ وہ سو گیا تھا، یقیناً اس نے صبح سویرے اٹھنا تھا۔ میں بھی بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، سوچ رہی تھی کہ صبح امی ابو کے گھر چلی جاؤں گی۔ آنکھوں سے نیند کافی دور تھی، میرے ذہن میں ہمارے گھر کی یادیں چل رہی تھیں۔ آصف نے اپنی دیوانگی کی بنا پر مجھے اپنایا تھا۔ آصف مجھے بے پناہ چاہتے تھے، انہوں نے مجھے ایک نظر ہی دیکھا اور مجھ پر فدا ہو گئے تھے۔ پھر اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیج کر رشتہ بھیجا۔ میرے والدین کے انکار پر انہوں نے خودکشی کی کوشش کی۔ تب ماں باپ نے بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا اور آصف کے ماں باپ کی درخواست پر میرا رشتہ آصف کے ساتھ کر دیا۔ ویسے بھی ان میں کوئی برائی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ خاندان کے باہر کے لوگ تھے اور ہمارے خاندان میں زیادہ ترجیح اسی چیز کو دی جاتی کہ لڑکا خاندان کا ہو۔ بہرحال آصف کی اتنی دیوانگی اور محبت ایک پل میں ختم ہو گئی۔ میں انہی یادوں کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ اب شرمندہ ہو رہے تھے۔ دروازہ کھولو نگین، مجھے اپنی بات کا بہت دکھ ہے، خدا کے لیے ایسے مت کرو، اب بس کر دو لڑائی۔ آصف آپ سمجھ نہیں رہے، یہ معمول کی لڑائی نہیں ہے، ہماری طلاق ہو چکی ہے، میں اب آپ پر حرام ہوں۔ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ اب میں آپ کے سامنے آ جاؤں گی؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز بھی بھر آئی۔ کافی دیر تک میری منتیں کرتے رہے، دروازہ بجاتے رہے، مگر اب وہ میرے لیے غیر محرم ہو چکے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ایک مرد کی وجہ سے اللہ کی نظر میں گناہ گار ہو جاؤں۔ میں نے دروازہ نہ کھولا، تھک ہار کر وہ بھی بیٹھ گئے۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ آفس چلے گئے ہوں گے۔ میں نے دروازہ کھولا، کچن میں آئی تاکہ کچھ کھا پی کے اپنے گھر میں جا سکوں۔ اتنے میں آصف بھی آ گئے۔ ان کا انداز والخانہ تھا، وہ تو اب بھی مجھے اپنی بیوی سمجھ رہے تھے، مگر مجھے اپنی حدود کا علم تھا۔ میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر اپنا سامان وغیرہ اٹھایا اور جانے لگی تو ایک بار پھر منت کر کے بولے، ہماری طلاق کا کسی کو علم نہیں،
ऐसी गलतियां तो मर्दों से हो ही जाती हैं। तुम यहीं रह जाओ, तुम्हें कुछ ना कहूँगा। हम इसी मसले का कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। मगर मैंने गवारा ना किया कि एक गैर मर्द के साथ एक ही छत के तले रहूं। सुबह अपना सामान लेकर माँ बाप के घर आ गई। अम्मा अब्बा की पहले ही परेशानियां हजार थीं। ये कुछ इस अंदाज से मिले कि मैं अपनी तलाक का बताया ना। अम्मी ने पूछा तो कहा कि आसफ कुछ दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं। मैं अकेली थी, इसलिए कुछ दिन के लिए इधर आ गई। अम्मी अबू को तो मैंने मुतमिन कर दिया था, मगर मेरा दिल खुद बेचैन था। मैं जानती थी कि मैं आसफ के बिना एक पल नहीं रह सकती। मैं रो रो कर मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं, मगर अभी तक किसी को अपना गम ना बताया था। अम्मी अबू को भी हकीकत का इल्म नहीं था, मगर दिल को यही सोच खाए जा रही थी कि मैं यहाँ कितनी देर रहूँगी। एक ना एक दिन तो उन्हें पता चल ही जाएगा। फिर गम का इतना बड़ा पहाड़ ये लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। अगले दिन मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि आसफ का फ़ोन आ गया। वो अब भी मिन्नतें कर रहे थे कि तुम मान जाओ। उन्हें शायद समझ ना आ रही थी कि वो मुझे तलाक दे चुके हैं और अब इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं दोबारा उनके साथ बीवी बनकर रहूं। आसफ के मजबूर करने पर भी ना मानी तो उन्होंने अनोखी बात कही, अब तुम अगर एक हफ्ते के अंदर घर वापस ना आई तो मैं किसी और औरत से शादी कर लूँगा। ये बात सुनकर मैं तड़प कर रह गई। मैंने कह दिया, अगर आपको कोई अच्छी औरत मिले तो भले दूसरी शादी कर लें, मैं तो उम्र भर आप ही के नाम पर बैठी रहूँगी। ये सुनकर आसफ भी बेताब हो गए। उनको मेरी मोहब्बत का इल्म हो गया था, मैं उन्हें कितना चाहती हूँ। तभी अगले रोज़ घर पर दस्तक हुई। अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो सामने आसफ खड़े थे। अम्मा हैरान होकर पूछने लगी कि बेटा तुम तो शहर से बाहर गए थे ना। मैं वापस आ गया हूँ और नगीन को लेने आया हूँ। अम्मा अब्बा के सामने मैंने पहले भी इस बात का इजहार नहीं किया था कि हम दोनों के बीच क्या हो चुका है, तब भी मैंने उनका भरम रखा। अम्मा कहने लगी, बेटियाँ अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, तुम अपने शौहर के साथ चली जाओ। आसफ भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। मैंने सोच लिया, अभी घर से निकल जाऊंगी, आसफ के साथ घर से निकलूंगी, फिर किसी दारुल ईमान में पनाह ले लूंगी। तभी उनके साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। आसफ बड़े नादम थे, कहने लगे, मैंने इस सब का हल सोच लिया है। हम दोबारा मियाँ बीवी के बंधन में बंध सकते हैं अगर तुम थोड़ा सा ताउन करो। क्या ताउन? आसफ, मैंने उन्हें हैरत से देखा। तो तुम जानती हो, जब मियाँ बीवी के तलाक हो जाती है तो फिर उनके लिए एक ही रास्ता रह जाता है। मुझे मेरे दोस्त ने बताया है कि अगर तुम्हारी बीवी किसी और से कुछ दिन के लिए निकाह कर ले तो दूसरे शख्स से तलाक लेकर हम दोबारा एक हो सकते हैं। आसफ की बात सुनकर मैं काम कर रह गई। आसफ, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी और से निकाह करूं और फिर उसके साथ चंद दिन रह भी लूं? मैं कोई खिलौना तो नहीं हूं। आपने ये बात सोची भी कैसे? मैं उनकी संग दिली देख कर रो पड़ी। समझने की कोशिश करो नगीन, तुमसे ज़्यादा ये मुश्किल बात मेरे लिए है। एक मर्द कैसे गवारा कर सकता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ रहे, लेकिन ये कुदरत का कानून है। उसने मर्द के गुस्से की सज़ा यही तजवी की है। वो अपनी गैरत पर यह बात गवारा करे। मुझसे भी गलती हो गई। काश इस बात का अंदाज़ा पहले होता तो मैं उस दिन ये हरकत ना करता। तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ज़रा सा शक्की मिजाज हूँ, तुम बर्दाश्त कर लेती तो क्या हो जाता। आज हम इस मुश्किल में तो ना फंसते। आसफ अपनी गलती का इल्ज़ाम मुझे दे रहे थे। बहरहाल गाड़ी का सफ़र ख़त्म हो गया। आसफ ने गाड़ी रोकी, मुझे घर के अंदर चलने का कहा। मैंने कहा मैं घर में नहीं जाऊंगी, मुझे किसी दारुल ईमान में ड्रॉप कर दें। तब उन्होंने एक और कहानी सुना डाली। बोले, मेरे ऑफिस में एक लड़का है, गरीब और यतीम है, उसे कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं। मैंने उस लड़के को ना सिर्फ नौकरी दी बल्कि उसे काम भी सिखाया। वो यतीम है, मुझे अपना बड़ा मानता है। वो लड़का बहुत भरोसे वाला है।
आसफ की सारी बात मेरी समझ में आ रही थी। वो तुम्हें वक्त पर तलाक दे देगा, मैं जानता हूँ उसे। वो मेरी हर बात मानता है, तुम्हें इज्जत से रखेगा। तुम क्यों घबरा रही हो? चंद दिन की तो बात है, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आसफ मुसलसल इसरार कर रहे थे कि मैं उनके 17 साल मुलाजम से निकाह कर लूं और फिर हम दोबारा इसी रिश्ते में बंध जाएंगे। जबकि मैं उस पर राजी ना थी। तब आसफ ने मुझे धमकी दी, अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो अपनी जान दे देंगे और ज़िंदगी भर मैं तड़पती रहूँगी। मैं उनकी जुनूनी तबीयत से वाकिफ़ थी। मजबूर होकर मैंने सर झुका लिया। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था, मगर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। आसफ ने गाड़ी अगले मोड़ पर डाल दी। वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे। आधे घंटे में हम उनके ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने फ़ोन करके उस लड़के को अपने ऑफिस बुलाया। 15 मिनट बाद एक दुबला पतला सा नौजवान बैरूनी कमरे से अंदर दाखिल हुआ। उस लड़के को देखकर ही मैं समझ में आ गया कि यह कितना काबिल भरोसा है। उसके चेहरे के तासरात और उसके मुझे देखने का अंदाज बता रहा था कि यह लड़का इतना भी मासूम और ताबियादार नहीं है जितना कि मेरे शौहर को लगता है। वो हमेशा लोगों पर भरोसा करते आए थे, मगर लोग उन्हें ऐन वक्त पर धोखा दे देते थे। मैं जानती थी कि ये लड़का भी काबिल भरोसा नहीं है। और फिर मुझे इस बात का अंदाज़ा तब हुआ जब आसफ सारी बात समझाने पर लड़के की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई। उसके लिए तो ये एक सुनहरी मौका था कि वो अपनी हर बात मनवा सके। मैं जानती थी कि निकाह के बाद वो आसफ को ब्लैकमेल करेगा। उसकी शक्ल सूरत और बात करने का अंदाज इंतहाई आमियाना था और वो काफ़ी मतलबी लगता था, मगर आसफ को न जाने क्यों उस पर भरोसा था। मेरा दिल बोझल सा हो रहा था। थोड़ी ही देर में हम तीनों गाड़ी में आकर बैठ गए। आसफ गाड़ी चला रहे थे। ये लड़का उनके साथ ड्राइविंग सीट के साथ बैठा था, जबकि मैं पिछली सीट पर अपने नसीब पर आंसू बहा रही थी। हम लोग मौलवी साहब के घर पहुंच गए। मौलवी अदील मेरे शोहर को इससे पहले नहीं जानते थे, मगर उनके बारे में मशहूर था, कई लोगों की मदद करते हैं। जबकि उनकी बीवी के बारे में भी लोग यही कहते थे कि वो एक रहमदिल खातून है। अलामा अदील और उनकी बीवी को तकरीबन हमारा सारा मोहल्ला ही जानता था, मगर वो हमें ना जानते थे। उनके घर पहुंचकर हमने दरवाजे पर दस्तक दी। मौलवी ने हमें मेहमान समझकर अपने घर बिठा लिया। तब मेरे शौहर ने उनको एक फर्जी कहानी गढ़ी सुना दी कि मैं इस लड़के और लड़की का निकाह करवाना चाहता हूँ। उन दोनों का सरप्रस्त बनकर उन दोनों को एक पाक और मुकद्दस रिश्ते में बांधना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इनके घर वाले उनकी शादी के खिलाफ हैं, इसलिए आप इनका निकाह पढ़ा दें। मौलवी साहब को सारी हकीकत मालूम ना थी, जबकि मेरे बहते आंसू कुछ और ही कह रहे थे। उन्होंने मुझसे कई बार पूछा कि क्या मैं इस निकाह पर राज़ी हूँ। मैंने उनको हामी भर ली अपने शौहर की बातों के खौफ से। मैंने भी रजामंदी जाहिर कर दी, मगर मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। तब अंदर से मौलवी साहब की बीवी आगे बोली, लड़की को मेरे पास भेज दें। अलामा साहब ने मुझे अपनी बेगम के पास भेज दिया। मैं उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोती। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी सारी कहानी उनसे कह दी। मेरी बात सुनकर वो कानों को हाथ लगाने लगी, बेटी तुम और तुम्हारा शौहर किस जहां में रहते हो? तुम लोग मुसलमान भी हो या बस कलमा पढ़ा है? इस्लाम की तालीमात के बारे में इंसान को खुद इल्म होना चाहिए, ना कि हर ऐरे गहरे से पूछ ले। अपने शौहर को समझाओ कि पहली शादी की इद्दत पूरी कैसे बिना औरत दूसरा निकाह नहीं कर सकती। क्या उसे इतनी सी बात नहीं मालूम? और फिर ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है, क्योंकि मियाँ बीवी तलाक के 3 महीने में आपस में दोबारा रुजू कर लेते हैं तो तलाक नहीं होती। क्या तुमने अपने शौहर को ये बात नहीं बताई? मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो ये कि मैंने कभी दीन के बारे में मालूमात लेने की कोशिश ही नहीं की, और आसफ के दीनी मामला तो मुझसे भी कमज़ोर थे। अलबत्ता मुझे इन चीज़ों का इल्म था जिन पर मैं अमल भी करती थी। इसी दौरान मेरी तबीयत ख़राब हुई। मौलवी साहब की बीवी ने पहचान लिया कि मैं उम्मीद से हूँ। उनके चेहरे पर खुशी के रंग खिल गए।
लो भाई, तुम्हारी तो तलाक ही नहीं हुई, तुम तो उम्मीद से हो। उनकी बात सुनकर मैं भी हैरान हो गई, क्योंकि इस बारे में मैं खुद भी नहीं जानती थी। तब उन्होंने तस्दीक के लिए मोहल्ले से दाई को बुलाया। उसने भी ये बात बता दी कि मैं पेट से हूँ। ये बात सुनते ही मौलवी साहब की बीवी खुश होकर उठी और बाहर का दरवाज़ा खोला और बाहर जाकर अपने शौहर को सारी बात बता दी। मौलवी अदील ये सुनते ही गुस्से में आ गए। उन्होंने मेरे शौहर को अच्छी खासी सुना दी और बोले, दीन के मामलात का अगर इल्म ना हो तो कम से कम इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम अगर अपनी बीवी का हलाला करवाने जा रहे थे तो कम से कम मुझे आगाह कर देते, भला अपने वकील से भी कोई बात छुपाई जाती है। मौलवी साहब की बात तो दुरुस्त थी। मेरे शौहर आसफ अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहे थे। वो अपने दोस्त से सुनकर निकाह तो करवाने चले थे, मगर उन्होंने इस बात को जानने की जहमत गुजारा नहीं की कि इस निकाह के क्या शराइत और कवायद होते हैं। खैर, जब आसफ को पता चला कि वो बाप बनने वाले हैं तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। मौलवी साहब और उनकी बीवी की दुआएं लेते हम लोग घर आ गए। हमारी नज़रें तो हमारा मसाइल हल हो चुका था और आसफ एक दूसरे की ज़िंदगी में दोबारा शामिल हो गए थे। मगर हम सोच भी नहीं सकते थे कि जो गलती हमने उस लड़के पर भरोसा करके कर दी है